Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. हरे कृष्णा सबको। आज हम लोग देख रहे अध्याय 17 का श्लोक संख्या 22 और श्लोक संख्या 23। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। जय श्री भगवान। तो आज हम लोग श्लोक संख्या 22 से शुरू करते हैं। राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद धर्मकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The king said, O you who are in the form of bull, you know the truth of religion, and you are speaking according to the principle that the destination intended for the perpetrator of irreligious acts is also intended for one who identifies the perpetrator. You are no other than the personality of religion. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो ट्रांसलेशन में बताया कि राजा जो थे परीक्षित महाराज, जो धर्म जो बैल रूपी धर्म था उसको बोल रहे थे कि आपको मतलब धर्म की पूरी जानकारी है, और जो मतलब आप जिस तरीके से जो बात कर रहे हैं वो ये क्लियर बताता है कि जो प्रतीत ये रहता है, मतलब जो अधार्मिक रहता है और जो इनको परेशान करता है और जो अपराधी है उसको जो धर्म मतलब जो उसके लिए जो इंटेंशन उनको जो पाप कृत्य करने के वजह से उनको जो सजा मिलती है और उनके लिए जो बोलते ना उनका जो गंतव्य स्थान है वो ही गंतव्य स्थान है उनके लिए जो उस पापी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप मतलब क्लियर कट बोलते पर्सनैलिटी ऑफ रिलीजन ही हो, आप इतना प्रॉपरली बात करते हैं। एक्चुअली ये जब श्लोका इसको अच्छी तरह से जानकारी लेने की जब मैंने कोशिश की तो कल मेरा ना बहुत सारे जो थॉट प्रोसेस थे ना उसको काफी बोलते धक्का लगा, और जो अपनी सोच थी इतने सालों से वो सोच को ही बहुत बड़ा मेरा धक्का लगा। ये मेरे लिए एक्चुअली काफी नया इंफॉर्मेशन था कि हम लोग अगर अपराधी मानसिकता वाले यार हम पे जो परेशान करने वाले अपराधी लोग हैं, अगर हम लोग ने उनको आइडेंटिफाई करके उनको अपराध देने के लिए अगर हमने अपने तरफ से कोशिश की या हम लोग ने उनको आइडेंटिफाई भी किया तो हम लोग को भी वही सजा मिलती है। ये मेरे लिए बहुत नई बात थी, एब्सोल्युटली नई बात थी, और मेरा अपने इसके ऊपर देखने का दृष्टिकोण ही चेंज हो गया। तो थैंक यू श्रील प्रभुपाद फॉर गिविंग मी सच अ नाइस इंफॉर्मेशन। तो हम लोग परपट देखते हैं। जय श्री प्रभुपाद। A devotee's conclusion is that no one is directly responsible for being a benefactor or mischief monger without the sanction of Lord. Therefore, he does not consider anyone to be directly responsible for such action. But in both the cases, he takes it for granted that either benefit or loss of is God sent, and thus it is His grace. In case of benefit, no one will deny that it is God sent, but in case of loss or reverses, one becomes doubtful about how the Lord could be so unkind to his devotee as to put him in great difficulty.
Jesus Christ was seemingly put into such great difficulty, being crucified by the ignorant, but he was never angry at the mischief mongers. That is the way of accepting a thing, either favorable or unfavorable. Thus, for a devotee, the identifier is equally a sinner, like the mischief monger. By God's grace, the devotee tolerates or reverses. Maharaja Parikshit observed this, and therefore he could understand that the bull was no other than the personality of religion himself. In other words, a devotee has no suffering at all, because so called suffering is also God's grace for a devotee who sees God in everything. The cow and bull were never placed any complaint before the king for being tortured by the personality of Kali, although everyone lodges such complaints before the state authorities. The extraordinary behavior of the bull made the king conclude that the bull was certainly the personality of religion, and for no one else could understand the finer intricacies of the codes of religion. हम लोग दूसरा अध्याय देख लेते हैं. दूसरा श्लोक देखते हैं. तो श्लोक संख्या 23. अथवा देव मायाया नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचिश्चापि भूतना मिति निश्चय. Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Thus it is concluded that the Lord's energies are inconceivable. No one can estimate them by mental speculation or by word jugglery. Purport by Srila Prabhupada. A question may be raised as to why a devotee should refrain from identifying an actor. Although he knows definitely that the Lord is the ultimate doer of everything, knowing the ultimate doer, one should not pose himself as ignorant of the actual performer. To answer this doubt, the reply is that the Lord is also not directly responsible, for everything is done by his deputed Maya Shakti or material energy. The material energy is always provoking doubts about the supreme authority of the Lord. The personality of religion knew perfectly well that nothing can take place without the sanction of the Supreme Lord, and still he was put into doubts by the deluding energy, and thus he refrained from mentioning the supreme cause. This doubtfulness was due to the contamination of both Kali and the material energy. The whole atmosphere of the age of Kali is magnified by the deluding energy, Maya, and the proportion of measurement is inexplicable. तो हम लोग अभी ये जो देख रहे हैं कि ये जो बैल रूपी धर्म था, उन्होंने अपने पे जो अधार्मिक कृत्य करने वाले जिन्होंने इनको प्रतिपादित किया था, उनका नाम उन्होंने दिया नहीं था, वो नहीं बता रहे थे नाम. तो एक्चुअली ये आज का जो मैं परपट बताने का जा रहा हूँ कि आज के ऊपर जो मैं देने के जा रहा हूँ, ये हिज ग्रेस अचिंत्य चैतन्य दास, इनका कल मैं पढ़ रहा था और इन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है. तो मैं उसमें से थोड़े से पॉइंट्स निकाल के बताने का ट्राई कर रहा हूँ. अगर मेरे से कुछ भूल हो गई तो मुझे प्लीज माफ कर देना, क्योंकि ये जो कुछ बता रहा हूँ ये जो अच्छा है वो हिज ग्रेस अचिंत्य चैतन्य दास का है, और अगर कुछ भूल हो गई तो वो मेरी गलती है. तो उन्होंने एक श्लोक का शुरुआत किया था. वो बोल रहे थे कि तत्ते नुकंपम सुमीक्ष सुसमीक्ष मानो. ये एक्चुअली उनका एक श्लोक था. मुझे पूरा श्लोक समझा नहीं, उसके लिए मैंने पूरा लिखा नहीं, लेकिन इस श्लोक का उन्होंने अर्थ बताया. तो बोलते कि इस श्लोक में बहुत गहरा सत्य छुपा है, और वो सत्य जो है वो हम लोग ने आज परपट में देखा था कि मतलब उससे एक्सपेक्ट ये है कि ये जो श्लोक बताता है कि अपराधी को जो सजा मिलती है वो ही अपराधी की पहचान करने वाले की मंजिल बन जाती है. तो जो हम लोग ने आज श्लोक में पढ़ा था एग्जैक्टली वही है यहाँ पे. तो उन्होंने एक दूसरा श्लोक उसके लिए बताया था. तो प्रभु जी बता रहे थे कि ये जो उनके लिए भी एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था ये, मतलब उन्होंने जब बताया था तो वो यही बता रहे कि हर वक्त है ना, जो उसने अपने जीवन में जो कुछ हो रहा है वो भगवान की कृपा समझ के लेना चाहिए. मतलब वो उसने ये बोल रहे थे कि अगर कोई भक्त पे कुछ मुसीबत आ भी गई, अगर उसको किसी चीज की परेशानी हो भी गई, तो उसने वो लेना चाहिए कि ये भगवान की मेरे पर कृपा है
कि ये शायद मेरे पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता था, लेकिन मैं भगवान को शरण हो गया हूँ। उसके भगवान ने मेरे को इसके ऊपर बहुत छोटा-सा मेरे पे ये किया है। और अगर मैंने कुछ मेरे से अगर डेफ़िनेटली मेरे से या तो गए जन्म में कोई बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसकी सज़ा मेरे को भगवान ने दी है। तो वो भी सज़ा कम करके। तो उन्होंने एक थोड़ा-सा पीछे जाके उन्होंने क्रिश्चियनिटी के ऊपर उन्होंने एक थोड़ा एग्ज़ाम्पल दिया था। तो उन लोग बोले कि जो वेस्टर्न कल्चर है, उसमें थियोडिसी नाम का एक उन्होंने एक दिया है कि एक संप्रदाय है जो मतलब मतलब जो पूरा जो क्रिश्चियन लोगों का जो ये है, वो थियोडिसी प्रिंसिपल को फ़ॉलो करते हैं। तो वो थियोडिसी प्रिंसिपल ये बताता है कि भगवान की कृत्यों की सच्चाई साबित करना, मतलब भगवान ने ऐसे क्यों कृत्य किए और अगर भगवान कर रहा है, तो उसके पीछे क्या वजह है। तो ये जो वजह ढूँढने का उनका एक प्रिंसिपल है, उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया और प्रॉब्लम ऑफ एविल ये उनको बेसिक इंटेंशन था कि बाबा ये जो बुरी शक्तियाँ हैं, वो हम पे क्यों इफ़ेक्ट करती हैं और फिर भगवान उस पे किस तरीके से उसको टैकल करते हैं। तो उन लोग ने बहुत सोच विचार करके वो एक जगह पे आ गए कि भगवान कैनॉट मतलब गॉड कैनॉट, गॉड विल नॉट मतलब भगवान या तो कर नहीं सकते या भगवान करना नहीं चाहते। अगर कर नहीं सकते तो फिर वो ऑल पावरफुल को ये पहुंचेगी ठेस पहुंचेगी और नहीं करेंगे तो वो जो ऑल और मर्सीफुल करके लेवल पे जाते कि भगवान बहुत दयालु है तो वो उस पे ठेस पहुंचेंगे। तो फिर क्या करेंगे तो उन्होंने ना एक एग्जाम्पल प्रभु जी ने दिया है कि कोई कुशनर नाम का एक ये थे जिनके बेटे को पेजोरिया हो गया था। तो वो 1963 को उनका जन्म हुआ था और 1977 को वो उनका बेटा चल बसा 14 साल में। तो ये 14 साल में जो नॉर्मली हम लोग को 70-80 साल लगते हैं हम लोग जो होता है वो पेजोरिया का वो जो बीमारी है उसमें मतलब जस्ट जानकारी के लिए बताता कि वो फटाफट होता है उस पे मेरे को लगता है हम लोग पे बीच में एक पिक्चर भी आके गया था अमिताभ बच्चन का। तो उससे लोगों को पता चलेगा कि वो जो है कि 14 साल में आदमी 70 साल की उम्र जी जाता है फटाफट उसका मतलब बचपन से जवानी जवानी से बूढ़ापा। तो ये कुशनर को बहुत दुख हुआ उसका बेटा तुरंत गया है उसके ऊपर उसने काफी रिसर्च किया काफी चीज किया तो और बाद में उसने फिर उसके ऊपर एक किताब लिखा। तो वो किताब का नाम लिखा था कि व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। और फिर उसने पूरा किताब के एंड में उसने वहां पे जाके बोल दिया कि गॉड कैन नॉट मतलब ऐसे नहीं कि गॉड विल नॉट बोलते गॉड कैन नॉट। और वो गॉड कैन नॉट पे आके उसने ये कर दिया और काफी लोगों ने ये मान भी किया कि गॉड ऑल पावरफुल नहीं हो सकते हैं उसके लिए वो ये जो बुरी शक्ति है उसको वो वो मतलब भगवान के सामने होते भी काम करती है और भगवान के पास उतनी ताकत नहीं होती है कि वो बुरी शक्तियों से का ये कर सकते और फिर ऑल पावरफुल ये चीज पे गॉड नहीं भी ये होता है स्टैंड नहीं होता है। ये उनके किताब पे मतलब उनका फाइनल वर्डिक्ट था और बहुत लोगों ने वो एक्सेप्ट किया और अभी भी एक्सेप्ट करते हैं। तो उन लोग का बेसिकली क्या है कि ये पुराना जन्म गया जन्म आने वाला भक्त और हम लोग जो भगवत गीता में कृष्ण ने जो बोला हुआ हम लोग जो त्रिगुण जो बोलते हैं माया शक्ति जो हम लोग बोलते हैं ये उनका उनको इसके ऊपर ज्ञान उसका जो अज्ञान है वो उसके वजह से उन लोग को रियलिटी पति नहीं और फिर वो एक जगह पे जाके अटक जाते हैं कि गॉड कैन नॉट विच इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। हम लोग तो क्लियरली मानते हैं कि गॉड कैन डू एनीथिंग। गॉड ऑल मर्सीफुल भी है गॉड गॉड ऑल पावरफुल भी है। फिर हम लोग जो पूरा प्रभुपाद जी ने हम लोग को जो 6 पिलर्स बोलते हैं हम लोग गॉड इज ऑल नॉलेजेबल ऑल ये ब्यूटीफुल ऑल नॉलेज ऑल वेल्दी फुल रिनंसिएशन। तो ये जो सब कुछ अब हम लोग तो प्योरली मानते हैं और हम लोग क्यों मान सकते हैं क्योंकि हम लोग को ये जो पुराने जन्म के बारे में हम लोग को जो बताया गया है कर्म और हम लोग का जो कर्म का फल ये जो हम लोग ने पूरा भगवत गीता में हम लोग ने जो पढ़ा है उसके से हम लोग को क्लियर पता है कि हमारे साथ जो भी बुरा हो रहा है वो पूरी की पूरा हमारी जिम्मेदारी के हमारी वजह से हो रहा है।
तो प्रभु जी ने प्रभुपाद जी के जब जो फाइनल वर्ड्स थे, प्रभुपाद जी जब जा रहे थे, तभी उस फाइनल वर्ड्स को उन्होंने जस्ट वापस से रिप्लाई किया था। तो प्रभुपाद जी ने बोला था कि एवरीथिंग, एवरी मोमेंट इज मूविंग एंड एक्टिंग बाय द सुप्रीम डिजायर ऑफ श्री कृष्णा। तो ये प्रभुपाद जी के फाइनल वर्ड्स थे और वो प्रभु जी ने कब कल हाईलाइट किए। तो प्रभु जी ने ना कल एक थोड़ा सा डॉक्यूमेंट जैसे एक था, एक पढ़ा था। तो उन्होंने बताया था कि जो अभी तक जो प्रभुपाद जी के कमेंट्रीज थे, जिनको आचार्य ने काफी, बहुत सारे आचार्यों ने उनको पे काफी ये किया था, मतलब बताया था। तो वो तीन प्रभु जी थे, मतलब तीन आचार्य थे जिन्होंने वो सब कमेंट्रीज को कंपाइल करके एक छोटा डॉक्यूमेंट बनाया था। तो प्रभु जी ने वो डॉक्यूमेंट कल पढ़ के बताया था। तो वो जो तीन आचार्य थे वो हिज ग्रेस प्रज्ञानंद गोवरराज, हिज ग्रेस गोपी परांदन प्रभु और हिज ग्रेस द्रविड़न प्रभु, ऐसे वो जो तीन आचार्य थे, उन्होंने सभी जो कमेंट्रीज थे प्रभु जी के इसके पर्टिकुलर इस श्लोक का रिलेटेड, उनको कंपाइल किया था और वो कल प्रभु जी ने पढ़ के बताया था। तो फिर हम लोग को प्रभु जी, मतलब प्रभुपाद जी ने हम लोग को जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो ये भक्त को ये अगर 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जैसे फॉलो करेंगे, तो हम लोग जो मतलब श्रीला श्रीधर स्वामी जी के बारे में उन्होंने रेफरेंस दिया था कि जैसा एक जायज बेटा रहता है, उसको सिर्फ जिंदा रहना पड़ता है पिताजी का वसीयत अपनाने के लिए। तो वैसे ही हम लोग अगर प्रभुपाद जी के अगर 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स प्रॉपर फॉलो करेंगे, तो हम लोग तुरंत जायज बंदे बन जाते हैं भगवान के गोलोक वृंदावन जाने के लिए। ऐसे श्रीला श्रीधर स्वामी जी ने बताया। तो मतलब ये कितना बढ़िया स्टेटमेंट है। और मतलब ये बेसिकली हम लोग को एग्जैक्टली बता रहा है कि हम लोग को क्या करना है। तो कोई एक बंदा है, उस बेटा है, उसके अगर बहुत सारी पिताजी की संपत्ति है, तो उसको क्या करना है? उसको सिर्फ जिंदा रहना है बच्चे को, और कुछ नहीं करना है। उसको सिर्फ जिंदा रहना है। तो पिताजी जाने के बाद वो सब जो जायदाद है वो उस बेटे के नाम आने वाली है। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को भी सिर्फ जो प्रभुपाद जी ने हम लोग को 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल दिए है, उनको लेके सिर्फ हम लोग को जिंदा रहना है और कुछ नहीं। रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, जो और 16 राउंड जो करना है, ये करके हम लोग को सिर्फ जिंदा रहना है और कुछ नहीं करना है। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग गोलोक वृंदावन जाने के लिए तुरंत क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये श्रीला श्रीधर स्वामी जी का रेफरेंस है कि कल प्रभु जी ने चिंत्य चैतन्य प्रभु जी ने कल बताया था। तो उसमें ये जो हम लोग जो श्लोका देखते रहते, वो सुसमीक्षा मानो, ये रिलेटेड उन्होंने कल बताया था कि भक्त जो है वो बहुत आतुर भाव से भगवान की कृपा की राह देखते रहते हैं, कि मतलब इसके बावजूद कि उन्हें बहुत परेशानी से क्यों ना गुजरना पड़े। तो अगर मतलब पढ़ता भी है भक्तों के, अगर तो भक्त जो है वो अपने पे होने वाली परेशानियों को कभी उसके लिए भगवान को दोषी तो रखते ही नहीं है, खुद को दोषी मानते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये एक भगवान की मेरे लिए कृपा है, क्योंकि भगवान मेरे पे इतना प्यार करता है। वो एक्चुअली मेरे को डायरेक्ट मेरे पे उसकी नजर है। तो ये उनको एक अलग तरीके से अच्छा लगता है कि या भगवान मेरे को देख रहा है और मेरे पे ये वो इस तरीके से कृपा कर रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी मेरे जो पुराने पाप है और जो मेरे पुराने मैंने जो सब ये किए रहेंगे, मेरी जो गलतियां जो की रहेंगी, उसके रिलेटेड भगवान तुरंत मेरे को इस बार सजा देके उसके रिलेटेड उस पापों से मुझे छुटकारा दे रहा है। और वो मुझे गोलोक वृंदावन लेके जाने की के लिए ये सब मेरे पे मेहरबानी कर रहा है। तो ये जो हमारे से जो भी मतलब भक्त का उन्होंने बताया कि भक्त का ये जो पर्टिकुलर एटीट्यूड ही होता है कि जो उसके साथ परेशानी होती है वो भगवान की कृपा समझ के चलता है। तो यहाँ पे मतलब प्रभु जी ने वो भगवत गीता का जो एग्जाम्पल दिया था कि जिसमें भगवान ने कहा है कि जो पूरी तरह से मेरे शरण में आता है उसका अपने पुराने पापों की चिंता नहीं करनी पड़ती है। तो
हम लोग अगर कृष्ण के शरण में आ जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि जो मेरे शरण में आता है उसको मैं अपने साथ ले लेता हूँ, और फिर आई टूक चार्ज ऑफ एंटायर हिज एक्टिविटीज, और पूरे उसके जन्म का मैं अपने आप अपने पे ले लेता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग को अगर भगवान के शरण में हम लोग जाएंगे तो भगवान हम लोग को तुरंत अपने चरणों में लेके फिर वो हमारे जो जो हमारा जीवन है, और उस जीवन में हम लोग जिस तरीके से अपने कृत्य और ये करेंगे और जिसका हम लोग को जो भी जिस तरीके से उसका रिएक्शन मिलेगा, वो सब भगवान की कृपा रहेगी और भगवान खुद उस पे इंटरफियर करेंगे। तो ये जो होता है कि भक्तों के अगर पुराने जन्म का जो इफेक्ट रहता है उसके उससे इस जन्म से भक्त को खुशी अनुभव करने की थोड़ी सी इच्छा रही, तो मतलब इस कैसे क्या उन्होंने प्रभु जी ने बताया कि हमारे जो इतने सालों के कर्म है, इतने जन्मों के हमारे जो कर्म है और जिससे हमारा स्वभाव बना है, तो क्या होता है कि इस जन्म में भी हम लोग उस जो स्वभाव है उसका इफेक्ट हमले पे रहने की वजह से हम लोग एक एंजॉयमेंट की राह देखते हैं, मतलब किसी ना किसी तरह से हल्का सा अपने को एंजॉयमेंट की इच्छा होती है। तो वो एंजॉयमेंट की इच्छा होते ही तुरंत भगवान अपने को पनिशमेंट देता है, और वो पनिशमेंट हम लोग को या फिर जो दूसरे को लगता है कि ये पनिशमेंट जो है हमारे पुराने सिंफुल रिएक्शन से है, लेकिन वो एक्चुअली सिंफुल रिएक्शन नहीं रहते। वो भगवान की अपने पे कृपा रहती है कि भगवान हमको पूरा का पूरा प्यूरिफाई करना चाहते हैं। तो ये जो हम लोग बोलते हैं कि एंजॉय विदाउट लॉर्ड, तो जो एंजॉइंग विदाउट लॉर्ड जब वो जो हमारी मानसिकता जब बन जाती है, मतलब ये भक्तों के लिए प्रभु जी बता रहे थे कि एंजॉइंग विदाउट लॉर्ड की अगर भक्ति की मानसिक अगर ये मानसिकता बन गई तो भगवान उनके लिए एक अलग तरीके से वो ये करते हैं, सजा डिफाइन करते हैं, जिससे वो क्या होता है कि उनका जिसके वजह से वो सजा हो गई है उसी पे वो प्रतिबंधित हो, उसी पे वो प्रतिबंध लगा देते हैं। मतलब हम लोग को जो जिस कारण से हमको इच्छा हुई उसके ऊपर अगर हम लोग को सजा दी, तो वो सजा से हम लोग को वो जो इच्छा करने की जो 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 इच्छा जहां से शुरुआत हो गई उसी को उन्होंने मतलब सोर्स को ही वो बंद कर देते, उसी पे प्रतिबंध लगा देते। तो ये प्रभु जी का कल कहना था। फिर उन्होंने और फिर आगे बोला कि अगर भगवान को भक्त ने पूरी तरह से समर्पित कर दिया तो क्या होगा कि भक्त खुशी से स्वीकार करता है कि भगवान की सजा अपने मतलब जो भगवान की सजा मिलती भी हो तो भी वो काया वाच और मन से हार्ट से वो पूरी तरह से भगवान को समर्पित होता रहता है, और जो अपने पे बनते रहता है उसको वो मामूली कीमत समझता है कि मुझे बाद में जाना क्या है, तो गोलोक वृंदावन जाना है, और आज मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तो मैं आज आज भगवान मुझे जो सजा दे रहा है वो बहुत मामूली कीमत है। और वो हम लोग क्यों नहीं सोच सकते मामूली कीमत, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो 84 लाख योनि घूम के आ गए, और आज का जो हम लोग का जन्म है, मनुष्य का जन्म, वो क्या जाने वो पहला जन्म थोड़ी ना होगा। हम लोग शायद कितने हजार जन्म मनुष्य के भोग के आए रहेंगे, और वो 1000 बार मनुष्य का जन्म और 1000 बार 84 लाख योनि का जन्म, तो इतने जन्म हम लोग भोग के इतने शायद कितने चतुर्युग हम लोग ने इसमें पास किए रहेंगे, कितने हम लोग दुखों में भोगे रहेंगे, हम लोग को कुछ भी पता नहीं। और आज हम लोग को ये चांस मिला है कि आज भगवान हम पे इतनी कृपा करके हम लोग को उसने अपने सरेंडर में ले लिया है, और वो देख रहा है कि हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी प्यूरिफाई हो, हम लोग जल्दी से जल्दी कैसे सच्चे भक्त बने और फिर उसके गोलोक वृंदावन में जाए। तो ये भगवान एक्चुअली हम लोग को मदद कर रहा है। तो हम लोग को मतलब ये जो भक्त रहता है उसके लिए वो ये जो परेशानी जो लगता है कि भगवान हम पे इतनी परेशानी हम लोग को दे रहा है, वो एक्चुअली वो लगता है कि ये बहुत मामूली कीमत है कि इसके आगे मुझे क्या मिलने वाला है। मतलब 1 रुपए देके 1 किलो गोल्ड मिलने की जैसी कीमत में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या मामूली कीमत में हम लोग को 1 किलो गोल्ड मिल रहा है, अगर हम लोग कैसे सोचेंगे तो इस टाइप का ये मामूली कीमत समझते हैं कि आगे चल के हम लोग को गोलोक वृंदावन लेके जाने के लिए भगवान हमसे थोड़ा सा हमारे ही सजा को हम लोग को मतलब हमारी ही गलती को कम तौर पे सजा देके भगवान हम लोग को आखिर में वृंदावन लेके जाने के लिए हमको ये कर रहे हैं। तो ये हम लोग ये जो है भक्त का
मानना है कि ये स्वच्छता प्रक्रिया भगवान हमारे साथ कर रहे हैं। तो लगता तो है कि वो सिनफुल रिएक्शंस के भांति, लेकिन वो एक्चुअली होता नहीं है। वो पर्सनल हैंड ऑफ लॉर्ड है। तो कल प्रभु जी ने डिवोटी और नॉन डिवोटी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया था कि ये हम लोग जो ऊपर का जो ये है उसमें देखेंगे तो ये हम लोग का डिवोटी का जो भक्त का जो है वो एक सोच है। लेकिन नॉन डिवोटी के बाद में वैसा कुछ नहीं रहता है। वहां पे प्योर कर्म और कर्मफल ये एकदम प्रॉपर जैसा है, वो सेम है, उसमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने मतलब एक एग्जांपल दिया था कि ग्रेविटी जो है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसमें अगर एक 4 साल का लड़का भी अगर ऊपर 10वें माले से कूदेगा तो भी उसको जो ग्रेविटी है नीचे खींचेगी। या 50 साल के लड़के आदमी ने खींचा और ऊपर से कूदा, औरत कूदी या कोई भी कूदा, तो वो उसको ग्रेविटी का जो है लॉ से उनको जाना ही पड़ेगा, नीचे गिरना ही पड़ेगा। तो वहां पे उसमें कोई भगवान वहां पे हस्तक्षेप करता नहीं। वो माया और जो 3 गुण ऑफ जो नेचर है वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। तो लेकिन वो जब डिवोटी रहता है तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त को पूरा समर्पण करना चाहिए। भक्त ने अगर जैसे ही पूरा समर्पण किया है तो कृष्णा उसको तुरंत अपने हाथ में ले लेता है। ही टेक्स इमीडिएट चार्ज। और फिर वो क्या करता है, रिकॉन्फिगर करता है अपने जो पुराने जन्म है, आपके अपने पुराने पाप पाप है, उनको वो रिकॉन्फिगर करता है, उनको री अरेंज करता है, उनको एडजस्ट करता है। और वो फिर वो सबको एडजस्ट करके वो हमारे जो सफरिंग्स है उसको तय करता है। और ये सफरिंग तय करके आखिर में हम लोग को क्या करते हैं कि जन्म मृत्यु श्रृंखला से वो हम लोग को तुरंत निकालते हैं। तो मतलब प्रभु जी ने कल वैक्सीनेशन का एग्जांपल दिया था। तो वो बोल रहा है कि पर वैक्सीनेशन देके होता क्या है कि हम लोग को पहले तो जो साइड इफेक्ट दिखते हैं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये रहता है कि वैक्सीनेशन से हमारा जो जिस चीज का जिस क्या इलाज के लिए हम लोगों ने वैक्सीनेशन है उससे हम लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो कल एक्चुअली जो प्रभु जी एक एग्जांपल दे रहे थे और कल जो मेरे साथ हो गया वो तुरंत अचानक मैच हो गया। कल दोपहर को जब पढ़ रहा था प्रभुपाद जी का एक एग्जांपल, प्रभु जी ने कल बताया था कि प्रभुपाद जी एक कार में जा रहे थे और कार एक अचानक स्पीड ब्रेकर से उड़ी तो उनका प्रभुपाद जी का सर वो ऊपर टकराया कार के सीलिंग से और उनको हल्की सी बोलते ना एक जख्म हो गई। तो जब वो पहुंचे वहां पे तो भक्त को ये मतलब जब मतलब उधर के जो उनके शिष्य थे उन्होंने जब देखा वहां पे पहुंचने के बाद तो अरे बाप रे, बोलते हैं अरे प्रभुपाद जी आपके साथ ये हो गया। तो बोलता हाँ ये भगवान की कृपा है, नहीं तो शायद मेरा सर पूरा कलम हो जाता था। ये तो कृष्ण की मेरे पे कृपा है। तो ये जो कल मतलब एग्जाम्पल पढ़ा था और एक्चुअली मैंने तुरंत मेरे साथ एक बार रिलेट किया था कि 1.5-2 महीने पहले मैं ऐसे हमारे बेडरूम पे चल रहा था और मेरा पाँव कल उस दिन फिसल गया और मेरा पाँव का जो जो 2 उंगली थी वो अपना जो कॉट है उसके कोने में लगा और बहुत दर्द हुआ मुझे। लेकिन तुरंत मैं फिर उठ के थैंक यू बोला भगवान को कि अच्छा हुआ कि आपने सिर्फ ये मेरा थोड़ा सा मतलब जख्म तो नहीं था, बोलते ना वो मतलब जोर से पटकने से कैसा जो होता है वैसा दर्द हुआ था। लेकिन अगर गलत जगह पे था उसके तुरंत बगल में वहां पे एक थोड़ा कोने जैसा था, वहां पे काफी ये थी मतलब पॉइंटेड वो पोर्शन था। तो अगर वहां पे पाव लगता तो शायद मेरे को बहुत बड़ी जख्म होती। तो वो तभी मैंने थैंक यू बोला था। और ये कल प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल हुआ और कल शाम को ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि कल मेरा गलती से कुछ काम करते समय हाथ डिसलोकेट हो गया। मेरे साथ मेरा बेटा था और मैं जोर जोर से हंसने लगा। तो मेरा बेटा बोलता कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो मैंने बोला कि यार मेरे शायद कुछ कल बहुत बड़ा होने वाला था। कृष्ण ने मेरा एकदम तुरंत जस्ट हार्ट डिसलोकेट करके मेरी बहुत बड़ी मतलब इससे छुटकारा कृष्ण ने दिया है। तो ये मतलब बोल सकते हैं कि हम लोग ये एक अपने इसमें हम लोग अगर इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जो भी अपने साथ हो रहा है उसमें कृष्णा का डायरेक्ट हैंड है समझ के। लेकिन और डायरेक्ट हैंड क्यों है? वैसे तो हम लोग जानते हैं कि एवरीथिंग इज सैंक्शन्ड बाय कृष्णा। जो भी हो रहा है वो कृष्ण की इच्छा होता है कि ही इज अनुमंता और उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, हम लोग मानते हैं। लेकिन
मानना और एक्चुअली जब हमारे साथ होके उसको इम्प्लीमेंट करना, ये थोड़ी सी अलग भी बात हो गई। तो ये भक्त जो लोग रहते हैं वो डेफिनेटली वो करते हैं। मतलब मेरे से शायद गलती से कल हो गया रहेगा, मैं क्या भक्त नहीं हूँ, लेकिन अगर कुछ गलती से हो गया तो पहले हम लोग, मतलब मैं तो रोते रहता था, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन कल शायद कृष्ण की कृपा थी कि कल मुझे याद आ गया कि कृष्ण ने इंटरफेयर किया है। तो जो, लेकिन जो रियल भक्त रहते हैं वो ये सब जो परेशानी होती है, ये जब से उनको उस परेशानी से वो कुछ, उनको वो दुख नहीं होता है, वो तुरंत मान लेते हैं कि ये हमारे लिए भगवान ने अपने पे इतना प्यार जताया है कि जिसकी वजह से हम लोग को ये सब चीज को हम लोग सहन कर सकते हैं, और हम लोग को ये सहन करना पड़ेगा। तो सॉरी मैं थोड़ा सा और मतलब टाइम ले रहा हूँ, एक जस्ट 2 मिनट में मैं खत्म करता हूँ। तो प्रभु जी ने कल पांडवों का एग्जांपल देके बताया था कि देवकी और द्रौपदी के बारे में बताया था कि देवकी और द्रौपदी में सबसे ज्यादा दुख किसने भोगे, तो द्रौपदी ने। भले देवकी ने अपने पुत्र को खोए रहेंगे, तो भी वो एक एक टाइम ही था, लेकिन द्रौपदी का कंटिन्यूस कुछ ना कुछ तो हो रहा था। और उसके बाद हुआ क्या कि जब अश्वत्थामा ने उनके बेटों को मार दिया, ये हम लोग ने तो स्टोरी मतलब पढ़ी है, कि वो फिर भी द्रौपदी ने अश्वत्थामा को मारने से मना कर दिया। उन्होंने उसको मरवाया नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर जैसा मुझे मेरे अ, बच्चे खोने का मुझे जैसा गम है और जैसा मुझे दुख हुआ है, वो ही गम अश्वत्थामा के माँ को होगा अश्वत्थामा को खोने से। तो उसने देवकी ने द्रौपदी ने क्या किया, अश्वत्थामा को छोड़ने के लिए अर्जुन को और कृष्ण को बोल दिया। तो ये जो है वो हम लोग को क्लियर कट एक एग्जाम्पल, मतलब अपने लिए एक एग्जाम्पल डिफाइन कर रहा है कि हम भले ही कितने भी हम दुखों से गुजरना पड़े, और हम लोग को अगर कितना भी कोई कष्ट दे रहा है, तो वो कष्ट एक भगवान के सैंक्शन ही है, और वो भगवान की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। ये हम लोग को देखना है। और इसके लिए जो ये जो श्लोक था कि भक्त को जो होता है वो सिर्फ उसके वजह से ही होता है, ये भगवा भक्त की मानना। और हम, अगर हम लोग कोई भी ये जो मतलब अपराधी को जो भी सजा मिलती है, वो ही अपराधी की पहचान करने वालों को की मंजिल बन जाती है। ये जो पॉइंट है हम लोग को बहुत अच्छी तरह से मानना पड़ेगा। और हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हम हमको जो परेशान कर रहे हैं वो एक माया के हाथ की कठपुतली की तरह है, डांसिंग डॉग बोलते हैं हम लोग उसको, कठपुतली जैसे बोलते हैं कि वो जो कठपुतली है, और वो कठपुतली माया के हाथ पे कठपुतली है और हमसे परेशान, हम लोग को परेशान कर रहे हैं। लेकिन उसकी परेशानी भी जो है वो भगवान ने सैंक्शन की हुई है, और उससे भगवान हम लोग को और कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करके हम लोग को, और कुछ उसका भगवान का कोई इंटेंशन है हम लोग को और अच्छा करने का। तो ये हम लोग को हर बार याद रख के हम लोग को अपना जीवन व्यतीत करना है। तो मैं अभी इतना बोल के अपना ये समाप्त करता हूँ। अगर मुझसे कुछ अगर गलती हो गई तो प्लीज प्रभु जी माता जी मुझे माफ कर देना। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा समीर प्रभु जी, थैंक यू। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। वेरी मतलब बोलूँगा इंटेलेक्चुअल प्रेजेंटेशन था। बहुत सारा जो फिलोसॉफिकल पॉइंट्स था कि दुख आते हैं, क्यों आते हैं और उससे कैसे डील करना चाहिए, इज वेरी नाइसली कवर्ड। और इसमें और एक चीज, मतलब जस्ट जब ये चल रहा था, आपका क्लास चल रहा था, तो एक चीज मुझे जस्ट मतलब ऐड करना था यहाँ पे कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं तो अभी भगवान की शरण में आ गया हूँ, तो अब क्यों मुझे परेशानी हो रहा है। और जैसे मतलब भगवान को प्रेम है तो तुरंत वो जो है सारा दुख या तकलीफ जो है वो कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वी की स्टिल कीप सफरिंग, हम लोग को सफरिंग होते रहता है। हम लोग भक्त बनने के बाद में भी हमारा सफरिंग खत्म नहीं होता। लेकिन एक जो नॉर्मल आदमी है उसका सफरिंग में और एक भक्त का सफरिंग में एक फर्क ये होता है कि ही अंडर एक डिवोटी जो है उसको समझ में आता है कि ये सफरिंग क्यों हो रहा है, वो उसको अच्छी तरह से समझ पाता है और वो क्या है ना, काउंटर एक्ट नहीं करता। लेकिन एक जो नॉर्मल आदमी है
वो ऐसे नहीं करता। वो जैसे वो फादर का एग्जांपल दिया कि वो बोलता है गॉड कैन नॉट बी ऑल पावरफुल, तो उसका बेटे की परेशानी से वो इतना त्रस्त हो गया कि वो फादर होते हुए वो बोलता है कि भगवान ऑल पावरफुल नहीं हो सकता। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि प्रभुपाद जी ने फिलोसफी हम लोग को कितना अच्छी तरीके से दिया है, और हम लोग कितना अच्छी तरह से इसको हम लोग जान रहे हैं। और मेन इसके जानने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग इसको प्रैक्टिकली कैसे हम लोग इसको अप्लाई करें। तो जैसे आपने कल जो वो डिसलोकेट हो गया था शोल्डर, उसका जो आपने शेयर किया, इट वाज रियली वेरी वंडरफुल कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। खाली सीखना और इसको समझने से कुछ नहीं होता है। नॉलेज मीन्स इट्स एन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो एक होता है नॉलेज मतलब ज्ञान, और एक होता है विज्ञान। तो विज्ञान मीन्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और या दैट्स इट। सो थैंक यू समय प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू, बहुत अपने अच्छे 2 पॉइंट्स डाल दिए थे। एक्चुअली हम लोग वो देखते हैं ना कि मतलब मैं बचपन में तो सुनता आया था कि 1-2 कंपोजिशंस मैंने पढ़े थे कि भगवान के मंदिर में चोरी हो गई करके, तो जो एथीस्ट आदमी ने लिखा था कि भगवान खुद के मंदिर को नहीं बचा पाएगा तो हम लोग को क्या बचाएगा। तो इतने फालतू और इतने गए गुजरे नॉनसेंसिकल लोग जो कमेंट्स भेजते हैं, जस्टिफिकेशन भेजते हैं, तो उनसे मतलब दया आती है उनके ऊपर कभी कभी कि इन लोग किस लेवल पे उनकी सोच गिरी हुई है और ये सोच से उन लोग अपनी जिंदगी व्यतीत करने वाले हैं। तो बहुत बुरा लगता है कभी उनके लिए, ऐसा लगता है कि उनको एग्जाम्पल क्या, उनको और कितना समझाए। हरे कृष्णा समेत प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। जैसे आज आपने पॉइंट्स दिए, अगर हम ऐसे ही चलेंगे तो हम लोग एक पीसफुल जीवन जी सकते हैं। और जैसे अभी आपने अभी ये जो स्टोरी बोला कि किसी ने कहा कि मंदिर चोरी हुआ तो भगवान, तो इन अ सर्टेन वे कि हो सकता है ये भी ऐसे लोग इसलिए है, मतलब ये भी भगवान का ही योजना है ऐसे लोगों का रहमती हम लोगों के टेस्ट के लिए कि ये लोग जब ऐसा लिखते हैं तो हम लोग उनको बिलीव करते हैं या फिर अपना श्रद्धा और स्ट्रांग होता है। क्योंकि व्हेन वी हियर लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमको भी ऐसा लग सकता है कि शायद उनके बात में भी दम है। सो दैट इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ टेस्ट मे बी लॉर्ड इज टेकिंग थ्रू दिस पीपल। तो मतलब जैसे आपने बताया एवरीथिंग इज मतलब ऑर्डेन बाय लॉर्ड ओनली, तो ऐसे भी क्लास ऑफ लोग होते हैं इन अ वे हम लोगों का टेस्ट लेने के लिए कि वेदर वी बिलीव देम और हम अपने श्रद्धा में अटूट रहते हैं। बट ओवरऑल बहुत अच्छा क्लास था। और अब जैसे मैं कहता हूँ हर एक पॉइंट जो आपने कहा अगर हम फॉलो करेंगे तो हम लोग किसी के ऊपर वी वोंट बी एजिटेटेड बाय एनीबॉडीज एक्शन, हमारे साथ जो भी होता है। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हमें एक बात याद है, वैसे तो हमें पता ही है सबको के भगवान हमें तकलीफ क्यों देते हैं कि हम और भगवान के करीब जाए और हम भक्ति करें। लेकिन अगर कोई मटीरियली आई मीन जो भक्ति में नहीं होगा तो उसको ऐसा लगेगा अरे जैसे मेरे घर में एक बार आग लगी थी 8-10 साल पहले। तो मुझे मेरी फ्रेंड है, बाजू में रहती है, नेबर थी वो, आप तो इतनी भक्ति करते फिर कृष्णा ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो वो टाइम पे आई डोंट रिमेम्बर कि मुझे जो भी दिमाग में आया था वो बात मैंने बोली थी। बट अभी भी मैं वो बात भी सोचती हूँ, मैं हंसती हूँ कि अरे कृष्णा की कृपा है कि वो भी कि उसमें भी कुछ भलाई होगी। जैसे हम तो बचपन से सुनते आ रहे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और हमें मुझे उसने बोला तो मुझे कुछ इतना ये हुआ भी नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि किसी को हम समझा नहीं सकते क्योंकि ये हमारे अनुभव होते हैं इस वजह से। तो ये आपका जब आप अनुभव बता रहे थे तब मैं सोच रही थी कि हमें पता है कि हमें भगवान तकलीफ क्यों देते हैं, क्यों कि हम और भक्ति करें और आगे बढ़े। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। बहुत अच्छे से आपका जो फ्लो भी था वो बहुत अच्छा था और पॉइंट्स काफी अच्छे थे। और बोलते ना कई बार कई बातें पता होती है लेकिन वापिस वो कोई धक्का मारता कोई वो तो एक ऑक्सीजन का काम हो जाता है। तो वापिस से एक बात याद आई कि हमें तकलीफ होती है इस वजह से ही कि हम और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, ऑल गुरु श्री श्री प्रभुपाद।